Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Asim Qayyum, lecturer physics from APS Damyal Camp, Rawalpindi. I welcome you to OSP round 2. I am here to deliver lecture number 7 of 10th class physics. At the end of lecture, you will be able to understand the concept of image location by mirror formula, refraction of light, laws of refraction, speed of light in medium, total internal reflection, application of total internal reflections, refraction through prism. Mirror formula is basically the relationship between object distance, image distance and the focal length of the mirror, that is 1 by f is equal to 1 by p plus 1 by q. Let's discuss the sign convention of mirrors. We can see the table in which when object distance p is positive, it means real object. When it is negative, it means virtual object. Similarly, when q is positive, it means real image, and when it is negative, then virtual image. Focal length is positive for the case of concave mirror and negative for the convex mirrors. Now discuss the example 12.1. In given example, a object is placed 66 cm in front of mirror having focal length 46 cm. As it is convex mirror, so we take focal length is negative. Applying the formula 1 by f is equal to 1 by p plus 1 by q, rearranging 1 by q is equal to 1 by f minus 1 by p, putting the values of f and p, we get q is equal to minus 27. The negative sign indicates that image is virtual and it is placed behind the mirror. The next topic is refraction of light. The refraction of light is basically the process of bending of light when it passes from one medium to another medium. यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है. इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. अगर आप इस फिगर को देखें, एक लाइट रे है, वो एयर से ग्लास के अंदर इंटर हो रही है, तो जो इंटरिंग रे है उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो ग्लास के अंदर जो उसका पाथ चेंज हुआ है या जो ग्लास के अंदर जिसका पाथ है, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे. अब ये जो एंगल चेंज हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो चेंज हो रहा है, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं. बेसिकली 2 लॉज हैं रिफ्रैक्शन के. फर्स्ट वन इज के इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है वो सारे के सारे एक ही लाइन के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं. सेकंड वन इज बेसिकली द साइन ऑफ, अगर हम रेशो लें, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, वो हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होती है, और इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं. और इस सेकंड जो लॉ है रिफ्रैक्शन का, उसको हम स्नेल लॉ भी पढ़ते हैं. यानी कि n इज इक्वल टू, n इज बेसिकली कांस्टेंट साइन i ओवर साइन r. प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र किया था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
क्या होता है, हमने वहाँ पे पढ़ा था, ये कांस्टेंट होता है और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो उसमें जो रेशो होती है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल की। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों अकर करता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज काज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। अगर हम देखें तो एयर के अंदर लाइट की स्पीड होती है अप्रॉक्सीमेटली 3.0 मीटर पर सेकेंड एंड वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन 2.3 मीटर पर सेकेंड के करीब होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब एयर से वाटर में ट्रैवल करेगी लाइट तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो चुकी होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक नई डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल 12.3. In the given question, a ray of light enters from air into the glass. The angle of incidence is 30 degree. If the refractive index of glass is 1.52, we have to calculate the angle of refraction. We have given I is equal to 30 degree and n, which is refractive index, 1.52. Using Snell law, which is n is equal to sin I over sin R. If we put the values, we get sin R is equal to sin 30 divided by 1.52. Now if we solve these values, we get sin R is equal to 0.33. To calculate the value of R, we take sin inverse of 0.33, we get R is equal to 19.3. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ों का पहले पता होना चाहिए। पहले कि डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जबकि रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो इसका मतलब है कि वाटर डेंसर मीडियम है और आपका जो एयर है वो रेयर मीडियम है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, जब भी लाइट ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी तरह जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ तो उसका एंगल जो है वो नॉर्मल से बेंड कर रहा है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह आप एक ख़ास पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ले जाते हैं कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इतना बढ़ जाता है कि उसकी वैल्यू 90 की इक्वल आ जाती है। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल एंगल। अब जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आप एंगल ऑफ इंसिडेंट्स को बढ़ाते हैं तो लाइट रे जो रिफ्रैक्ट हो रही थी, इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन इट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी कि वो रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस शुरू कर देती है और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करनी चाहिए और सेकंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
Now we will discuss applications of total internal reflection. First application is totally internal reflecting prism. इसमें क्या होता है कि आप प्रिज्म्स को यूज़ करते हैं, राइट एंगल प्रिज्म्स को, टू रिफ्लेक्ट द बीम ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज. अब 90 डिग्री कैसे बेंड किया जाता है, उसके अंदर आप लाइट को ट्रेवल इंटर करते हैं थ्रू परपेंडिकुलर सरफेस और उसको स्ट्राइक कराते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ. जब हाइपोटेन्यूज के साथ स्ट्राइक करती है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इट बिकम्स 45 डिग्रीज. अब ये जो 45 डिग्री है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है. क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज बेसिकली 42 डिग्रीज. अब कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम और क्रिटिकल एंगल से आपका इंसिडेंट एंगल ज़्यादा हो जाता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट बेंड करती है थ्रू 90 डिग्रीज. और ये जो बेंडिंग है 90 डिग्री, इसको हम यूज़ करते हैं पेरिस्कोप के अंदर. सिमिलरली हम इसका एंगल 180 भी अचीव कर सकते हैं. इसके लिए हम इसी लाइट को 2 दफ़ा बेंड करते हैं 90 डिग्रीज. तो फर्स्ट टाइम जब 90 डिग्री बेंड करती है तो फिर अगेन जब वो बेंड करती है तो दूसरी फेस की तरफ चली जाती है. तो वहाँ पे अगेन जब कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो लाइट 90 डिग्री ट्रैवल करके तो 90 + 90 टोटल 180 डिग्री का शिफ्ट देती है. और इस तरह की जो एप्लीकेशन है इसको हम यूज़ करते हैं दूरबीन के अंदर. The next application is very important, which is optical fiber. It is the device which has number of advantages in telecommunication field because it can be used to travel data with high bandwidth and less interference. Basically, it consists of 2 parts. Number 1 is core and second one is cladding. Core is the inner part with relatively higher refractive index, so it is denser medium, and cladding is low refractive index, so it is rare medium. When light enters from one end of core, it strikes the core cladding boundary. As the angle of incidence is greater than critical angle and it is traveling from denser medium to rare medium, it reflects back into the core, and in this way light travel for longer distance and with less interference of signals. So that is, we can say that optical fiber is very important application of total internal reflection. Light pipe is the combination of many hundreds or thousands of optical fibers bundled together. Light pipe is used to check inaccessible places by the doctor or engineers. Doctors used to examine internal body parts and engineers used to find cracks in machine parts. Doctor views inside the human body using light pipe. They can also used to transmit images from one part to the another place. The another application of total internal reflection is endoscope. That is a medical instrument used for surgical and diagnostic purposes. It is used to see the interior organs of the body. Due to very small size, it can be inserted by mouth, so
we can avoid invasive surgery. Flexible endoscopes have a very small camera attached to the one end, and doctor can see the images of the interior part of body on computer screen. Basically, endoscope can be divided into three types. Number one is gastroscope, used to examine stomach. Number two, cystoscope, used to examine bladder, and bronchoscope, used to examine throat of the body. आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब पहले आपको पता होना चाहिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लास का बना होता है, जिसकी दो साइड्स पॉलिश्ड होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड बना के एक पिरामिड शेप जनरेट करती है। अब जब लाइट प्रिज्म या किसी भी मीडियम में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो अपने पाथ को चेंज करती है, इसको हम रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कहते हैं। प्रिज्म में भी यही होता है कि लेट्स पीई रे जब इंटर होती है, पीई कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है। अब ये स्ट्राइक कर रही है फेस ए बी के ऊपर एट पॉइंट ई, और चूँकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर हो रही है तो ये बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल डिक्रीज। इसी तरह ये जो ई एफ रे है जिसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, वो प्रिज्म के अंदर ट्रैवल करेगी टूवर्ड्स द अनदर फेज of the prism, or it will emerge out from the prism making angle E। और आप देख सकते हैं कि जो इसका जो एंगल है वो ओरिजिनल से काफ़ी ज़्यादा डेविएट कर गया है। इमर्जेंट रे अब पैरेलल नहीं रही PE की, बल्कि अब वो एक नए एंगल D जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है उस एंगल से डेविएट कर गई है। तो इस एंगल को जो D से शो किया जा रहा है दैट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो प्रोसेस है कि जिसमें आपकी जो रे है वो एक मीडियम से यानी कि एयर से इंटर हुई प्रिज्म के अंदर, और प्रिज्म से जब वो बाहर आई तो अपना पाथ कम्प्लीटली चेंज कर चुकी थी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी होती है रिगार्डिंग लेक्चर तो आप क्यूरी टाइम में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।